Hello students, welcome back again to my channel Maths Together, and today's lesson, as I told you earlier, will be examples based on the chapter perimeter and area of square and rectangle. Here we are going to see three examples, okay, for all our diagram based examples. So let us first begin the first example. Yes. So student, look at the board. This is the figure and we have to find the area of this figure. Let us see how to find the area of this figure. This figure is neither a square nor a rectangle. Okay, but it is a combination of square and rectangle. So first what we'll do कि we will divide this figure into different parts. हम figure को different parts में divide कर देंगे जिससे कि हमें या तो rectangle मिल जाए या तो square मिल जाए. चलिए अब हम इस फिगर को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. सी, हमने इस फिगर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ये है रेक्टेंगल ए, दिस इज रेक्टेंगल बी एंड दिस इज रेक्टेंगल सी. नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, तीनों रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे और बाद में उस तीनों एरिया को ऐड कर देंगे जिससे कि हमें इस फिगर का एरिया मिल जाए. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल ए का एरिया, लेंथ और ब्रेथ क्या है और उसके एरिया क्या है. इन रेक्टेंगल ए लेंथ इज 9 सेंटीमीटर and breadth is 4 centimeter. So area will be 9 centimeter into 4 centimeter, 36 centimeter square. This is the area of rectangle A. Now rectangle B, length is 6 centimeter. And what is breadth? We don't know what is the breadth. So to find the breadth, what to do? क्या करेंगे हम? 9 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9 minus 7 सेंटीमीटर is 2 centimeter. Now its area will be L into B, that is 9 centimeter into 2 centimeter, sorry 6 centimeter into 2 centimeter, which is 12 centimeter square. Now अब देखते हैं फिगर सी का एरिया. इन रेक्टेंगल सी, लेंथ इज 11 सेंटीमीटर and breadth is 5 centimeter. So its area will be L into B, that means 11 centimeter into 5 centimeter, which is 55 centimeter square. So हमने देखा चिल्ड्रन कि यहाँ पे हमें तीनों पार्ट हमने डिवाइड किया था इस फिगर को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में, तीनों का एरिया सेपरेटली हमने फाइंड कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, इस तीनों एरिया को ऐड करके एरिया ऑफ द होल फिगर निकालेंगे. Therefore area of the figure is 36 centimeter square plus 12 centimeter square plus 55 centimeter square. Now 36 plus 12 plus 55 is equal to how much? 103 centimeter square. Now 103 centimeter square is the area of this figure. Clear? Okay children, I hope this sum is clear to you. Now we will see the next sum. In the next sum what we'll see is there is a park and that park is surrounded by a path. Okay, so we'll see how to find the area of that path which is surrounding the park. Okay. Okay children, now this is the second figure. In this figure there is a park
This is a rectangular lawn or park which is surrounded by a path, and the length of this park is 60 meter and its breadth is 47 meter. This park is surrounded by a path 1.5 मीटर ऑल अराउंड. एक पार्क है जो पार्क एक रेक्टेंगल के शेप में है, उसका लेंथ 60 मीटर है और ब्रेथ 47 मीटर है. इस पार्क के चारों तरफ एक पाथ मतलब एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर चारों तरफ है. नाउ हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इस पाथ का एरिया. ओके, ये पोर्शन जो पाथ का एरिया है, जो पाथ है, इस पाथ को हमें फाइंड करना है. इसका एरिया कितना होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं फिगर में कि हमें यहाँ पर दो रेक्टेंगल मिले हैं. एक आउटर रेक्टेंगल है ABCD और एक इनर रेक्टेंगल है PQRS. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आउटर रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे. ओके, park. What is the length of the park? Length of the park is 60 meter and the breadth is 47 meter. So area of the park is how much? L into B, that is 60 meter into 47 meter is 2820 meter square. ओके, नाउ अब हम फाइंड करेंगे एरिया, आउटर रेक्टेंगल का एरिया. तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें आउटर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ तो दिया नहीं है आउटर रेक्टेंगल का. तब कैसे फाइंड करेंगे? नाउ इन रेक्टेंगल ABCD, व्हाट विल बी द लेंथ? सी दिस लेंथ, ये लेंथ है आउटर रेक्टेंगल का. ये लेंथ कितना होगा? दिस मच इज 60, 1.5 this side and 1.5 this side. So length will be 60 meter plus 1.5 meter plus 1.5 meter, which is 63 meter. और breadth कितना होगा? This QR is 47 meter plus 1.5 meter plus 1.5 meter is how much? 50 meter. तो हमें ये जो रेक्टेंगल है ABCD, जो पार्क प्लस पाथ है, उसका लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गया है. वो लेंथ है 63 मीटर और ब्रेथ है 50 मीटर. अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ द पार्क प्लस एरिया of the path is L into B. Okay, 63 meter into 50 meter is how much? 3150 meter square. 63 into 50, 0, 5 3 is a 15, 5 carry 1, 6 5 is a 30, on 1 31, 3150. This is the area of this outer rectangle ABCD. और outer rectangle क्या है? This portion plus this portion, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है area of the path plus area of the path. Now अब जब हमें एरिया ऑफ द पाथ सेपरेटली निकालना है, तब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द पार्क प्लस एरिया ऑफ द पाथ में से एरिया ऑफ द पार्क को माइनस कर देंगे. दैट मीन्स 3150 मीटर स्क्वायर में से 2820 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे. सो चिल्ड्रन, अब तो हमें क्या मिलेगा? 0, दिस इज मीटर स्क्वायर, 3 28 29 30 31, 330 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ द पाथ कितना हो गया?
330 meter square. Okay children, now you copy the sum, okay, and then we'll see the next sum. Let's see children the third sum. Okay, in this third sum, I hope that the previous sum was clear to you all, and this third term is a little different kind of a sum. थोड़ा सा अलग है ये sum पहले दोनों sum से. आइए हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या है. ये एक फिगर है. दिस इज द फिगर ऑफ अ पार्क. इसको मान लेते हैं कि एक पार्क है. इस पार्क में 2 क्रॉस रोड्स है. एक वन रोड, बोथ द रोड्स आर रनिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर. दोनों रोड एक दूसरे को राइट एंगल में क्रॉस कर रहा है फ्रॉम द मिडल ऑफ द पार्क. ये दोनों रोड पार्क के मिडिल में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. और द लेंथ ऑफ द पार्क इज 70 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 45 मीटर. और जो पाथ है, जो रास्ता है, वो कितना चौड़ा है? वो 3 मीटर वाइड है. ठीक है. अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है यहाँ पर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क. रिमेनिंग पार्क, रिमेनिंग पार्क मतलब जो पाथ है उसको छोड़ के जितना एरिया बच जाता है, दैट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क. ठीक है बच्चों. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कैसे शुरुआत करें इस सम का. यहाँ पर हम देखेंगे फिर से एक बिग रेक्टेंगल है जो पार्क है, और वो पार्क प्लस द पाथ है. ठीक है. तो सबसे पहले हम उसका एरिया निकालेंगे. इन रेक्टेंगल ABCD, AB is 70 meter and the breadth AD is 45 meter, which is length and breadth. तो एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ द पार्क L into B, which is 70 meter into 45 meter. Meter square 0, 7 5s are 35, 7 are 28, 29, 30, 31. 3150 मीटर स्क्वायर आया हमारा इस पार्क प्लस पाथ का एरिया. अब हमें निकालनी है इस पाथ का एरिया. तो इस पाथ का एरिया भी हम 3 पार्ट्स में निकालेंगे. ओके. सबसे पहले हम देखते हैं ये इस वाले पाथ को जो लेंथ के पैरेलल है. ओके. नाउ एरिया ऑफ पाथ रनिंग पैरेलल टू AB, okay, is L into B. What is the length? Length कितना होगा? Length 70 मीटर होगा. और breadth कितना है? Breadth 3 मीटर है. तो ये कितना हो गया? 210 मीटर स्क्वायर हो गया. इसी तरह से हम एक दूसरा पाथ है जो ब्रेथ के पैरेलल रन कर रहा है, उसका भी एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ पाथ रनिंग पैरेलल टू AD is L into B. What is L? 45 meter. What is B? What is B? 3 meter. So कितना हो गया ये? 5 3s are 15, 5 carry 1, 4 3s are 12 and 113 मीटर स्क्वायर. तो हमें ये दोनों पाथ का एरिया हमने फाइंड कर लिया. अब बच्चों एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि ये दोनों पाथ एक दूसरे को कट कर रहे हैं. तो जहां पर ये दोनों पाथ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो एरिया तो ओवरलैपिंग हो रहा है. वो एरिया 2 बार आ रहा है कि नहीं? ठीक है. तब हम क्या करेंगे? एक बार इस एरिया को हम माइनस कर देंगे, बीच वाले एरिया को. ये एरिया जो है, इस एरिया को जो 2 बार आया है कैलकुलेशन में, उसे हमें एक ही बार लेना है. तो एक बार उसके एरिया को माइनस कर देंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक स्क्वायर बना है उसका एरिया कितना है.
area of overlapping square, side into side, and what is that side? वो side कितना है? 3 into 3, 9 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले एक टोटल एरिया ऑफ द पाथ निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ द पाथ विल बी 210 मीटर स्क्वायर प्लस 135 मीटर स्क्वायर minus 9 meter square is how much? 336 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द पाथ। अगर हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ द पाथ हो गया 336 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ द remaining portion of the path will be how much? Very simple, क्या करेंगे? जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ द पार्क प्लस द एरिया ऑफ द पाथ में से एरिया ऑफ द पाथ माइनस कर देंगे, तो इट इज 3150 मीटर स्क्वायर माइनस 336 मीटर स्क्वायर। So what will it give you? 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 12814 मीटर स्क्वायर। Okay children, so this is the sum and I hope that the sum is very much clear to you. अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को स्लो करके या पॉज करके या बैक जाके देखें, या फिर पहले वाला इसी चैप्टर से रिलेटेड जो पहला वीडियो मैंने डाला है आप उस वीडियो को रेफर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स हमने देखा है। अगर आपको आपके पास कोई और सम है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है सो आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व दैट फॉर यू ऑल। ओके बच्चों, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and thank you so much for watching the video. Thank you.